Good evening, sir. Good evening. So, hello everyone. Good evening to everyone. And from today onwards, we are going to start our content, right? Okay. Okay. So, let's start with our content. Our first topic is basically will see today, or we'll begin our content to see the basically classification of solid. Okay. So, let's start the classification of solid. Classification of solid. See, basically, solid has been categorized into the two types. Okay, you all must know. First one is crystalline solid. First one is crystalline solid, and other one is Non-crystalline amorphous, solid. amorphous solid or non-crystalline solid. Okay, amorphous solid. See, we'll do the comparative study between these two. Okay, and there's other two parts of crystalline solid also, that is single crystalline and polycrystalline. We'll discuss the later. Okay. So, what is a crystalline solid? See, the crystalline solid is a solid material whose constituent means like atom, molecules, or ions, are arranged in a very highly ordered specific manner. Okay, you can say it is arranged in a regular basis, in a regular fixed pattern. So the crystalline solid is the solid whose constituent means that is atoms or ions or molecules are arranged in highly specific manner, in highly ordered manner, Okay. Okay. Highly ordered manner means I am going to show you with the example. Okay. So let's see what does it mean. Okay. See, is it visible here? Okay. I am giving the example of the cube here. Let's suppose there's a cube. Okay. You all know about the cube. It has 6 faces, 3-dimensional lattice, whose volume is A cube, or if the side is A. Okay. So what I have said, I said the solid whose constituent are arranged in a highly ordered manner or in a fixed manner. See, अगर कोई atoms यहाँ पर arrange है, तो order manner का मतलब क्या हुआ? एक fixed regular pattern ये follow करेगा. ठीक है, एक फिक्स रेगुलर पैटर्न ये फॉलो करेगा. जिस तरह से ये राइट साइड में इसी के ठीक ऊपर बिल्कुल ये इस तरह से और अरेंज होगा. एक फिक्स मैनर में ये अरेंज होगा ऐसे थ्रू आउट द सॉलिड. ओके. सो इस तरह का जो सॉलिड का अरेंजमेंट होता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ओके, किस में रखते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ये हम जो ये कंसिडर करते हैं कि सॉलिड क्या है, पूरा इनफाइनाइट लैटिस हम डिस्कस करते हैं ना, तो इनफाइनाइट लैटिस में, पूरी लैटिस में इसी तरह का एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है. किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ओके, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड these fixed pattern of atoms and molecules will follow. Okay, regular fixed pattern. So you can write here a fix or regular pattern is followed. Regular pattern followed. Okay, followed. इसी के साथ अगर हम amorphous solid की बात करें, amorphous solid का ये है कि इसमें जो constituents हैं, the constituents of amorphous solid are not arranged in a highly ordered manner. Okay, it's a very, you can say, in a distorting manner. I'm showing you right now. See, let's suppose there's a solid. ये कोई solid है, मान लो ये कोई solid है. इसके जो amorphous solid के जो constituent होते हैं, जो atom होते हैं, बहुत ही unregular manner में arrange होते हैं. Like कहीं पर आपको ना इसकी density ज्यादा मिल जाएगी. Somewhere you will get a high density of atoms.
somewhere you will get a low density of atom. Okay, मीन्स कोई भी फिक्स रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं है, कहीं भी कितने भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सी, हम सब ने स्कूलिंग की हुई है, राइट? सो हमारे स्कूल Yes, sir. हमारे स्कूल डेज में क्या होता था कि भाई जब हमारी क्लासेस चलती थी ना, तो हम कैसे बैठते थे, एकदम जब टीचर क्लास में रहता था एकदम फिक्स मैनर में, राइट? अपनी अपनी सीट पे सब लोग बैठे हो, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है क्लास का, ठीक है ना। और वही जब हमारा रिसेस होता था, जब इंटरवल ब्रेक होता था, लंच टाइम होता था, फिर क्या होता था? कहीं 3 लोग का ग्रुप अलग बना हुआ है, कहीं 2 लोग का ग्रुप अलग बना हुआ है, कहीं 4 लोग का ग्रुप अलग बना हुआ है, ठीक है ना। सो आप इसको इस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हो दैट the fixed ordered manner followed the crystalline solid, and their distorting manner follows the amorphous solid. That is, somewhere density of atom is high. Okay, somewhere density of atom is low. Means you cannot say any fixed manner is followed. It does not follow any fixed manner. कहीं भी कितने भी एटम्स हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन में, ठीक है ना। सो ऐसी कैटेगरी जो होती है सॉलिड्स की, वो होती है एमॉर्फस सॉलिड की या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इतनी सी बात क्लियर है? सो द amorphous solid does not follow the fixed regular pattern. Okay, the amorphous solid does not have fixed or regular pattern of atoms. ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, सो द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज like, if we talk about the example, you can say the quartz crystal, the diamond. Okay, the diamond, and there are many more. You can any metal. Okay, these are the example of crystalline solid. And if you talk about the example of amorphous solid, it has also many examples like rubber. Okay, rubber, and you can say the plastics also a example of amorphous solid. Okay, so basically these two are the basic definition of crystalline solid and amorphous solid. ओके, बट हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जब कॉम्परेटिव स्टडी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी ये दोनों ही फॉलो करते हैं। ओके, सी, आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ अ क्यूब. लेट्स सपोज देयर इज अ क्यूब. ओके, एंड आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस बॉन्ड. सी, at the cube we all know that 8 atoms are present at the corner. हम इसको पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ेंगे इसको, बट एज अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझाने के लिए। हमें पता है ना, कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है क्यूब के। सो लेट्स सपोज वन एटम इज एट दिस कॉर्नर, वन एटम एट दिस कॉर्नर, वन एट दिस, वन एट दिस। बाकी भी सारे कॉर्नर्स पे होंगे, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स नेमिंग देम. दिस इज नेम्ड ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी. ओके, सी, these two atoms are bonded. See, means if we talk about these two atoms, let's suppose the bond strength is AV. Okay, इसका कुछ bond strength होगा अपना। इस C और D जो दो एटम आपस में इंटरेक्ट हैं, उनका भी अपना कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, व्हाट हैपन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द एनर्जी नीडेड, or you can say the heat needed to break this bond strength or this bond of the solid at the same amount of energy needed to break this bond also. And same energy will be needed to this bond, and every other bond of the solid. Okay, so what you can say from this? You can say that crystalline solid has a fixed or sharp melting point. Okay, भाई हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर अगर टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स एनर्जी पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सारे बॉन्ड एक ही टेम्परेचर, एक ही एनर्जी पे ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब इस सॉलिड का अपना एक प्रॉपर या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। सो वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इट हैव, सर, यस, जो एटम्स है जो डायगोनली जो प्रेजेंट है उनके लिए भी सर सेम होगा?
डायगोनली जो प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल सभी। जी देखो बॉन्ड इंटरेक्शन इसमें क्या होता है ना, हर एक बॉन्ड आपस में ना एक सेम एनर्जी के साथ बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जी ओके, सो एक सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना भाई। देखो आप किसी मेटल की जब बात करते हो तो हर एक मेटल के लिए अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं होता है, जी ठीक है सर। ना। तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है ना कि जैसे आपने वो टेम्परेचर पहुंचाया जितना भी है, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस है, जैसे वो 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। जी मेल्टिंग सर। कैसे स्टार्ट होगी, मतलब बॉन्ड सारे ही सारे बॉन्ड ब्रेक होना शुरू, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है उसका बॉन्ड ब्रेक होना। स्टार्टेड टू ब्रेक। सो दैट्स द मेन यस। कॉन्सेप्ट हियर इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, एमॉर्फस में क्या होता है, लेट्स सपोज these two atom are there and one bond from these two atom। कुछ एटम्स ऐसे होंगे, कुछ बॉन्ड ऐसे होंगे जिनको कुछ अलग एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना। मींस लेट्स सपोज these two atom will require some other energy, these atom at the same time will require some other energy to break down. That means the amorphous solid does not have any fixed or sharp melting point. Okay, so the amorphous solid, it does not have sharp melting point, sharp melting point, ठीक है। And at the same time, crystalline solid, it does have, or you can say it has sharp और fixed melting point, ठीक है ना। सो इस तरह से हम amorphous solid और crystalline solid को, उसकी बेसिक डेफिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो बात आती है सर हम डिस्कस क्या करेंगे फिर, क्रिस्टलाइन करेंगे या amorphous करेंगे, ठीक है ना। सो हमारा जो थ्रू आउट सॉलिड क्रिस्टलोग्राफी में थ्रू आउट जो हमारा मेन फोकस रहेगा, और मेन फोकस छोड़िए, जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे रहेगा। वी विल फोकस ऑन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई जिसके बारे में हमें पता है कि इसका एटम ठीक है, अरेंज है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसी के बारे में तो हम स्टडी कर सकते हैं ना। जिसका कुछ अपना खुद का नहीं पता है, वो कहाँ एटम प्रेजेंट है, कहाँ नहीं है, किस मैनर में है, उसके बारे में स्टडी कैसे हो सकती है, ठीक है ना। To study any solid, we need a symmetry at least. Okay, so that symmetry we get in the crystalline solid. And this is clear by the name also. What we studying here? Crystallography. So from where that name came? That name came from the crystalline solid. Okay, that name came from the crystalline solid. So our basic focus will be on the crystalline solid, and from now onwards हम जो भी पढ़ेंगे, जिस भी सॉलिड की बात करेंगे, वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा। ओके ओके, सो नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड आल्सो हैव टू, you can say two types of crystalline solid is there. First is single crystalline solid. I am writing here types of crystalline solids, types of crystalline solid. Okay, so the first type is single crystalline solid, single crystalline solid, and the other one is, anyone? पॉलीक्रिस्टलाइन सर। Polycrystalline, very good, the polycrystalline solid. Okay, so tell me what is single crystalline and what is polycrystalline. Let's start some interaction. क्या होता है सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन? सर सिंगल क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरा एकदम क्लियरली अरेंज हो जाता है सर, ओके, लाइक डायमंड स्ट्रक्चर। एंड जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर है या आई अंडरस्टैंड, व्हाट अबाउट पॉलीक्रिस्टलाइन? सर, इसका नंबर ऑफ क्रिस्टल रैंडम, इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडमली होगा सर, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, इधर उधर रैंडमली रहेगा सर ओरिएंटेशन। तो फिर ये क्रिस्टलाइन क्यों बोल रहे हैं इसको? Sir, it is between single and amorphous. पर्टिकुलर एरिया में से सॉरी, तो सिंगल क्रिस्टल में सिंगल एटम से बनेगा और पॉली में डिफरेंट डिफरेंट एटम का अरेंजमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो सर होता क्या है, अलग अलग लैटिसेस का यूज होगा, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस यूज हो सकते नहीं हैं नहीं, आई एम टेलिंग यू, पॉलीक्रिस्टलाइन। देखो होता क्या है, आई एम टेलिंग यू, सी द डेफिनेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड वाज क्लियर, ओके, ही वाज राइट। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये वही है जो अभी हम क्रिस्टलाइन की करते आए हैं, क्या
कि एक सॉलिड है जिसका एटम्स जो है ना अरेंज है स्पेसिफिक मैनर में। ओके, सो पहले सिंगल क्रिस्टलाइन को देखते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। सिंगल क्रिस्टलाइन, single crystalline. In a single crystalline solid, the arrangement of atoms or molecule are in a regular or fixed manner throughout the, you can say, atom or throughout the lattice. पूरे के पूरी लैटिस में, पूरे के पूरे लैटिस में, स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट है एटम का वो प्रॉपर फिक्स रेगुलर मैनर में होगा पूरे के पूरे एटम में। तो सर यही तो डेफिनेशन थी अभी आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बताई है, बिल्कुल यही बताई है। सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, you can say, resemble with single crystalline, but जो वहां मेन डिफरेंस आता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन में आता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन इज सेम एज द क्रिस्टलाइन, दैट द arrangement of atoms are on a regular fixed or on a regular or fixed manner, ठीक है, फिक्स मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, थ्रू आउट द सॉलिड, ठीक है ना, थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट द सॉलिड, इस पे थोड़ा फोकस करना, इस वर्ड पे, थ्रू आउट द सॉलिड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। सिंगल क्रिस्टलाइन इज सेम एज द क्रिस्टलाइन व्हाट वी हैव डिफाइंड। अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन की। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, देखो ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे एटम में फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, बट इसमें कुछ पैचेस होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, जो सेक्शन ग्रेन बाउंड्रीज से डिफरेंशिएट किए जाते हैं, और वो सेक्शन जो है वो अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो इधर। Yeah, please say in English. Yeah, please, I'm saying in a both language, don't worry. So the second is polycrystalline solid. Don't worry everyone. Board is not visible. Board is not visible. No, sir, it's clear. Yes, sir, It's clearly visible. No, sir. Okay, sir. Okay. Yes, our second is polycrystalline solid. Polycrystalline solid. I am showing from a diagram. Okay, let's suppose this is our some any solid atom. Okay, ये हमारा कोई lattice है. In this atom, in this lattice, there will be certain sections. Certain sections will be present. Let's name, this is a section 1, this is section 2, this is section 3, and this is section 4. Okay, I am saying in each section, the arrangement of the atom will be on a regular manner as was in crystalline solid. Okay, let's talk about first section 1. Atom will be arranged in a fixed manner, like I told you in the crystalline solid, in a fixed manner. Okay, completely in a fixed manner. Okay, in the section 2, also the arrangement of atom will be on a regular basis but different from 1. Understood? सेकेंड सेक्शन में भी क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगा एटम का वो भी अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही होगा, एकदम फिक्स पैटर्न, that will follow a fixed pattern itself, but it will be different from first section. Okay, it will different from first one. And the same manner, whole of the section 2 will follow the complete regular pattern of atoms or molecules. In the same way, in the third section, also the arrangement will be in a regular or fixed manner, but different from 1 and 2. Okay, ठीक है ना। हर एक सेक्शन में जो अरेंजमेंट होगा वो अपने आप में फिक्स रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगा, बट एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना। This is also a category of a crystalline solid. Okay, the whole section will be filled in a fixed regular pattern everywhere, but it will be different from 1 and 2. And similarly for the fourth one.
the arrangement of atom will be in a fixed regular pattern throughout the 4 section. But this will different from section 1, 2 and 3. Any 2 section may be equal, the arrangement may be equal. Okay, तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको पूरा का पूरा एक सेक्शन कंसीडर कर लेना. सिंपल सी बात है. ठीक है ना? फंडा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. The polycrystalline solid is a solid which contains number of single crystalline solid. Okay, in a polycrystalline solid there is a number of single crystalline solid will be there. And what does it boundary called? इस boundary को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं grain boundaries. Okay, grain boundaries. Grain boundaries. जब हम defects discuss करेंगे ना, तो grain boundaries को हम discuss कर लेंगे वहाँ पे. These boundaries are called grain boundaries. Grain boundaries. Okay. Okay. इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड इज rocks. And there's a metal also, very famous, copper metal. Copper metal is also a polycrystalline solid. Okay, the copper metal. ये भी क्या होता है? This is also a polycrystalline solid. Okay, understood? So बात क्लियर है? ये पूरी बात थी किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की. What we discussed? We discussed the crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid, where the arrangement of the atom is present on a very fixed regular manner. In amorphous, the arrangement is not fixed, is on a very distorting manner. Okay, crystalline solid have fixed or sharp melting point because at the same temperature, all the bonds break simultaneously. In the amorphous solid, you cannot say that okay, this solid is amorphous and this have this specific melting point. No, you cannot say. Okay, and other single crystalline solid has also 2 parts: single crystalline and polycrystalline. Single crystalline follow the same pattern as of crystalline solid, that is throughout the atom, throughout the lattice, the arrangement of atom will be on a fixed manner. But in the polycrystalline solid, the arrangement of atom will be fixed but different from other section. And you can say that in a polycrystalline solid, there is a number of single crystalline solid. Okay, यहाँ तक बात clear है सबको? Yes, sir. Okay. सर जो आपने लास्ट लाइन का एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? Last line, I said, देखो मैंने क्या कहा कि अगर ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड अवेलेबल है. ठीक है, मैंने ये बताया ना. सेक्शन ए में एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है, सेक्शन 2 में भी एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है, बट एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है ना? तो भाई प्रॉपर्टी किसकी है? ये सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की है ना. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट इन अ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज देयर. अंडरस्टूड? Okay. Anyone saying something? Anyone is saying something? Hello, sir. Am I audible? Yes, you are. Please. Sir, polycrystalline solid का melting point fix होगा क्या? Polycrystalline solid का melting point fix नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना? You can't say that this is a polycrystalline solid और ये fix होगा. You cannot say, because see, one section has completely following the single crystalline solid property. Okay, इसमें तो एटम प्रॉपरली अरेंज्ड है, बट इसमें इससे डिफरेंट है. ठीक है ना? सो यू कैन नॉट से इट मे एंड इट मे नॉट बी. इट्स बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इटसेल्फ. ओके, हो सकता है किसी सॉलिड में हो जाए और किसी सॉलिड में ना हो. ठीक है ना? सो इट बेसिकली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इफ यू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. बट इन जनरल ऐसा देखा जाता है, इन जनरल all the crystalline solid have a fixed melting point. Okay. Sir. Hmm. So then what is the difference between grains and crystallates? See, I will tell you all that the grains and the crystallate and everything will study in a defect and crystals. Okay.
So just follow the class, because if I will switch that portion, it will take a long time. Don't worry, when we'll discuss the defects and crystal defects, then grain boundaries and crystallate all will be clear. Okay? Okay, sir. Chalo. Sir, Yes? sir, I'm sorry, I got confused. In 1, 2, 3, 4, does the crystal have same structure, like similar structure with different orientation, Hmm. or different structure itself or as a overall? No. Structure, see, as I told you, na, example of copper metal. ठीक है ना? So you cannot say the structure is different. See, structure is not different. The arrangement of atom is different. Okay, see, let's suppose there is some section of copper metal. Okay, if in any portion the atoms arrange in any irregular manner or a different manner, and in this section atom arranged in a different manner, then there is no effect on this structure of crystal. ठीक है ना? ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी बात हो, माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो रही है कि एटम्स कैसे अरेंज है, दैट्स इट, नथिंग मोर अबाउट दैट। इससे ज्यादा कुछ बात नहीं है इसमें, ठीक है ना? इससे इसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेटल मेटल ही रहेगा, कॉपर का जो है वो कॉपर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? इसके अंदर ये कैसे अरेंज है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। दैट्स व्हाट ओनली द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड टोल्ड अस, दैट्स इट। Okay, sir. So it's like similar structure with different orientation. You can say that, okay, in any specific, you can say in any specific section, there is a multiple section is there, whose a particular section is there whose atoms or molecule are arranged in a different manner from other one. एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे कंपैरिजन में ओरिएंटेशन अलग होगा, ठीक है ना? मैनर, फिक्स मैनर में, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हो सकता है किसी में इस तरह से अरेंज हो, किसी में इस तरह से अरेंज हो, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना? आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? हुआ क्या सिंगल क्रिस्टलाइन में कि पूरे के पूरे एटम में आपने यहां से शुरू किया और वहां तक जो है, चलिए ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फिजिकल एग्जांपल से लोग जल्दी समझ जाते हैं। आप क्लासरूम में गए, एक बड़ा सा रूम है, ठीक है? आपने क्या किया, 50 स्टूडेंट्स को उसमें खड़े होने को बोला, जैसे कि आप असेंबली में करते हो। एक प्रॉपर लाइन, फिर प्रॉपर लाइन, अनदर प्रॉपर लाइन, अनदर प्रॉपर लाइन। ओके, this is the example, you can say this is the example of crystalline solid. What about polycrystalline? Means this is the example of single crystalline, that in a complete solid, in a complete room, the arrangement of student on a fixed regular pattern. What about the polycrystalline? Just take 4 section of a single room. Okay, just divide in the 4 section. ठीक है, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो, एक सेक्शन में ऐसे 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 खड़े कर दो स्टूडेंट्स को, एक सेक्शन में ऐसे 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 खड़े कर दो स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? एक सेक्शन में ऐसे डायगोनली ऐसे ऐसे करके खड़े कर दो, ठीक है ना? अरेंज तो वो भी है ना एक मैनर में, उनके बीच भी जो एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी, हर एक एटम्स के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, ऑल्दो वो भी डिफरेंट होगा, पहले वाले सेक्शन से वो अलग होंगे, वो अलग की बात है, बट वो अपने आप में तो अरेंज है ना स्पेसिफिक मैनर में। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जांपल मैंने Yes, sir. Got it, sir. ओके, गुड, Thank you, sir. थैंक यू। चलो, अच्छा ये बात है ना, फिजिकल एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाता है ना, मेरे साथ तो यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नाउ ये तो बात हो गई जनरल स्टडी, हम क्लास 12th 11th बीएससी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो यहां पर हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट बेसिक डेफिनेशन हियर, लाइक लैटिस, व्हाट इज लैटिस, व्हाट इज बेसिस, ओके, व्हाट इज बेसिस पॉइंट्स आर देयर, व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज देयर, and many more, lattice parameter, lattice vector, everything. Okay, so we are starting the discussion of crystal structure. In the crystal structure, first of all, I will discuss the lattice. Okay, anyone will tell me what is a lattice? Whatever you know, please be free. Lattice are the imaginary points. Okay, Constitute that. So basically, it's an arrangement of infinite number of imaginary points in 3 dimensions
which having point identical surroundings is called lattice point. Very good. See, both the definition are good. Both the definition are correct. Okay. I'm telling you here that if you talk about lattice, so our topic is lattice. So the first definition of lattice is, लैटिस जो होता है वो सिर्फ मन का वहम है। सीधी सी बात आप लोग जानो, लैटिस जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब सर कहोगे आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये हमने अपने लिए, आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस फॉर आवर सेल्फ, जिससे कि हम ना एटम के अरेंजमेंट को समझ सके। ऐसा नहीं होता कि किसी सॉलिड में पहले लैटिस आएगा फिर उसके ऊपर एटम आएगा, नो। ओके, सो व्हाट इज लैटिस? लैटिस इज बेसिकली as one student told that it is a imaginary point, okay, or you can say this is the mathematical concept. कैसे? देखो बताते हैं। What happen? Let's suppose there is some points here, okay, there is some points here. इसका भी मैं physical example दूंगा, don't worry. There is some points here, okay. देखो मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना जब तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर चलेगा थोड़ा सा ऐसा डायग्राम ना बनाना पड़ेगा। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है ना, बिकॉज हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। सो थोड़ा सा ना ऐसा डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे बीच बीच में, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ लैटिस पॉइंट और एनीथिंग, दिस इज सम पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं स्पेस में, एक ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। क्या है ये एक वैकेट जगह है, एक वॉइड है, एक खाली जगह है जो मेरे दिमाग में आई है कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी जगह स्पेस में होती होगी जहां पर एटम्स आकर बैठते होंगे। बात समझना ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग that I have assumed that okay, in the space there is some kind of voids are there, or you can say some vacant point is there where the atom will be take their place, ठीक है ना। So that's is the definition of lattice, that it is an imaginary point, as one said that it is an imaginary point. Imaginary point means, imaginary means what? It does not exist in a real, that's called imaginary. Okay, what is the imaginary point? Imaginary point that does not exist in a real. So this is an imaginary point, or you can say this is some mathematical concept which I have assumed by ourselves for मीन्स हमारी जो है एक सुटेबिलिटी के लिए, हमारे अपने कंफर्ट के लिए कि हम कितनी आसानी से स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ओके, सो द लैटिस इज, यू कैन से लैटिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस, इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस, इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस, ओके, दैट एवरी लैटिस पॉइंट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ना विजुलाइज करने की कोशिश करो। प्लीज विजुलाइज दैट देयर इज अ पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस वेयर द क्रिस्टल हैज एक्सटेंडेड टू द इंफिनिटी। हम जितनी बात करेंगे इनफाइनाइट क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, हर तरफ एक सेम पैटर्न हर तरफ फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा विजुलाइज करने की आप लोग कोशिश करो, ठीक है ना। नहीं हो रहा है तो अभी एग्जांपल भी देता हूँ। आप इधर देखते हो आगे सेम पैटर्न, इधर देखते हो सेम पैटर्न, ओके, उधर देखते हो सेम पैटर्न, उधर से हर जगह एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जिधर नजर घुमाओगे एक सेम पैटर्न दिखेगा आपको। आप कहोगे ठीक है सर, मैं अपनी सीट से उठ के दूसरी सीट पे चला जाता हूँ, ठीक है, उस वाले लैटिस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, वहां से भी आप देखोगे सब कुछ सेम दिखेगा। समझ रहे हो बात को? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज आप एक बहुत बड़ी फील्ड में बैठे हो, लेट्स सपोज यू आर सिटिंग इन अ वेरी बिग फील्ड, ओके, फील्ड जिधर भी आप देख रहे हो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाँ एक बहुत दूर का आसमान दिख रहा है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो समझना, ठीक है। एंड ऑन दैट, इन दैट फील्ड देयर सम चेयर्स इज देयर, सम चेयर्स, so कुछ कुर्सियां लगा दी गई हैं, ठीक है। आप जाके बैठते हो आराम से, ओके, बैठे चारों तरफ देख रहे हो कोई नहीं है, या फिर है भी तो सब आइडेंटिकल है, मैं मान के चल रहा हूँ कोई नहीं है, फॉर
टेलिंग यू द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या है, ठीक है ना। हर तरफ देख रहे हो कोई नहीं है, आपने कहा ठीक है, आंख बंद की, उठ के किसी दूसरी चेयर पे जाके बैठ गए, फिर देख रहे हो फिर सब कुछ सेम है, हर तरफ सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल एज वाज अर्लियर। सो ये कॉन्सेप्ट है किसका, आइडेंटिकल पॉइंट्स का। अच्छा ये आइडेंटिकल कैसे होते हैं, अपने शेप में, साइज में, हम सब बात करेंगे अभी आगे। बात समझ में आ रही है, आइडेंटिकल पॉइंट्स का मतलब समझ में आ रहा है, जिसका आइडेंटिकल सराउंडिंग हो, जिधर भी आप देखो, आगे पीछे ऊपर। भाई 3 डायमेंशन की हम बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डायमेंशन ना। सो इफ यू लुक अपवर्ड, यू लुक डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, everywhere the surrounding will be same. Okay, and what does it represent? It is the mathematical concept or imaginary point in space. यहां तक बात क्लियर है सबको? Okay, अब देखना, now I am going to discuss basis. Basis, what is this? Basis क्या है? अब बात आती है यहां से रियलिटी की। Basis is a what? Is a physical parameter. अभी रुकना, is a, you can say physical parameter, you can say from initial word you can say the physical parameter. Physical parameter क्या है ये? लैटिस आ चुकी हैं, कुर्सियां पड़ चुकी हैं, अब किसको आना है, बेसिस को। बेसिस मतलब कौन, हम लोग। यहाँ के लिए बेसिस कौन, एटम्स। एटम्स। ओके, बात समझ में आ रही है। फील्ड थी, फील्ड मतलब स्पेस, कुर्सियां पड़ गई, कुर्सियां पड़ गई मतलब वॉइड्स क्रिएट हो गया, लैटिसेस आ गए। अब कौन आके बैठेगा, हम लोग, मतलब कौन, एटम्स। सो एटम्स आएंगे और अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह ले लेंगे। एटम्स विल ऑक्युपाई देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। एवरी एटम विल ऑक्युपाई देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। बात क्लियर हो रही है। एटम, लैटिस क्या है, बेसिस क्या है। बेसिस इज बेसिकली नथिंग बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैटिस में अलग अलग, जैसे सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, वहाँ पे एटम्स होंगे, NaCl मॉलिक्यूल है ना, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस भी ऐसे आएंगे, ठीक है ना। सो एवरी बेसिस विल ऑक्युपाई देयर प्लेस, एवरी बेसिस विल ऑक्युपाई देयर प्लेस। हर जगह आकर, हर बेसिस ने, बेसिस मतलब कौन, एटम्स, एटम्स ने आके अपनी अपनी कुर्सी ले ली कि भैया हम बैठने जा रहे हैं अब। ओके, लैटिस, बेसिस, एटम्स आके बैठ गए। ओके, दिस इज अवर एटम्स। और ऑब्वियसली हम जानते हैं ये सारे एटम कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे ना, ठीक है ना, आइडेंटिकल होंगे। भाई अगर सोडियम एटम आता है तो सारे सोडियम ही आएंगे ना, ठीक है ना। सो एवरी एटम विल बी आइडेंटिकल। बात क्लियर हो रही है। लैटिस क्या है, बेसिस क्या है, बात क्लियर हो रही है। लैटिस इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और सम इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस, राइट। basis, basis is the physical parameter, physical parameter what, atoms और molecules, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया भाई, और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने 2 डायमेंशन में बनाया ना, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू द इंफिनिटी, पूरा हर तरफ है, ठीक है ना। ये हर तरफ ऐसे ही ऊपर नीचे पूरा इंफिनिटी तक। हम कभी भी किसी फिक्स पैटर्न, मतलब फिक्स लिमिट नहीं लेते हैं सॉलिड की स्टडी में ना, ये मान के चलते हैं कि सॉलिड कहाँ तक है, पूरा इंफिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है ना। दिस, yes, So you said every atom will be identical. okay, But if we take crystal of NaCl, we'll get. coming. Okay. coming. मुझे पता था ये आएगा, ठीक है। अभी 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 कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैंने ये नहीं कहा ना चलो खत्म आगे बढ़ो, यही नहीं कहा ना, ठीक है ना। चलो, आपने कहा NaCl, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है 2 एटम बेसिस का। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 एटम बेसिस। मेरा अगला वर्ड, अगली लाइन ही यही होने वाली थी कि दैट देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट one lattice point occupy more than one basis point. Understood? एक लैटिस पॉइंट एक से ज्यादा बेसिस रख सकता है। बेसिस मतलब क्या भाई, एटम मॉलिक्यूल्स ही ना। लाइक यू टेक एग्जांपल ऑफ NaCl, Na+Cl-। तो जब आएंगे दोनों साथ में ना, तो एक ही लैटिस पॉइंट पे दोनों के दोनों आएंगे। वो जब NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे, विल कंप्लीटली गो थ्रू द NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैसे होंगे, कैसे अरेंज होते हैं। डायमंड में भी एक्चुअली ऐसे ही होता है,
द डायमंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एक्चुअली अरेंज इन द 2 एटम बेसिस पॉइंट। पर उसमें क्या होता है, दोनों एटम सेम होते हैं कार्बन के, NaCl में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो आप अपनी कॉपीज में एक लाइन नोट करके लिख लेना दैट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन बेसिस एटम। एक लैटिस पॉइंट पे एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं, ठीक है ना, देयर मे बी मोर देन वन बेसिस पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे शो करोगे, मान लो एक हमने ये बेसिस लगा, इसके ऊपर एक और बेसिस लगा दिया, ये मतलब ऐसा ऐसा जो मींस यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये किटल की बुक में ऐसे ही दिया गया है। उसने क्या किया है कि देयर इज सम बेसिस पॉइंट और उसके ऊपर जो दूसरा बेसिस पॉइंट है उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। यू कैन मीन ड्रॉ इन एनी मैनर, बस ये पता होना चाहिए कि एक लैटिस पॉइंट पे एक से ज्यादा बेसिस एटम आ सकते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। वो कैसे अरेंज होंगे, कितनी डिस्टेंस पे होंगे, कौन किधर होगा, वो तो प्रॉपर्टी हो गई ना, वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होगी, जब जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फंडा ये है, फ्रॉम नाउ our funda is, our concept is, yes, on a single lattice point more than one basis point can be arranged. Okay, so if you talk about more than one basis, so एक के ऊपर एक ऐसे लगा दो, ठीक है ना। ओके, सब में ऐसे ही। प्लीज ये चीज ना आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, that one lattice point can have more than one basis. Actually, if you see the previous year exam 2005 में, in a 2005 JAM exam, one question has been asked. Today you can see the previous year. One question has been asked that in a NaCl FCC lattice, as the same question was there in a NaCl, that is FCC lattice, the which of the following is true about the NaCl as FCC lattice? चार option दिए गए थे. First is this is a one atom basis. This is a 2 atom basis. Okay, NaCl is FCC with 2 atom basis. NaCl is simple cubic SC with 2 atom basis. NaCl is FCC with 1 atom basis. NaCl is SC with 1 atom basis. इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्रीवियस ईयर में देख सकते हो, IIT-JAM 2005। वो क्वेश्चन का आंसर यहीं से होता है, दैट एक बेसिस पॉइंट पे, यानी एक लैटिस पॉइंट बोलो चाहे बेसिस पॉइंट बोलो, लैटिस भी यही है, बेसिस भी यही है, तुम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। On a one lattice point or on a one basis point, more than one basis atom can be present. Understood? Concept clear हुआ? Yes sir. Yes sir. Okay. अच्छा, अब देखिए डेफिनेशन आप लोग लिखते चलना, हाँ, जो जो डेफिनेशन है वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करके चलनी होंगी, ठीक है ना। चलो अब देखना क्या हो गया, क्या होगा यहाँ पे, भाई लैटिस आ गए, बेसिस आ गए, लैटिस इज देयर, बेसिस इज देयर, क्या फॉर्म हो गया, crystal structure. Crystal structure. Yes, crystal structure has been formed. भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, एक सिमेट्री में, एक फिक्स रेगुलर पैटर्न में एटम्स अरेंज हो, ठीक है। हमने सबसे पहले सबको अपना अपना जगह दे दिया, ठीक है ना। मीटिंग्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती है सबके नाम फिक्स होते हैं, मोदी जी यहाँ बैठेंगे, फलाने यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल वैसे ही है, जय गए अपना अपना अपनी सीट ले लिया। Although Modi ji and Rahul ji are different, but they are all atoms same. Okay, atoms कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, बात क्लियर है। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, सो आपने देखा होगा बुक्स में कुछ ऐसा लाइन लिखा रहता है, विजिबल है ना, बुक्स में ऐसा लाइन लिखा रहता है दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। देखा ये चीज लिखा हुआ, सारे ग्रेजुएशन बुक्स में लिखा रहता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। कैसे आता है, ऐसे आता है, एक स्पेस लिया, स्पेस में एक इमेजिनरी पॉइंट लिया कि हाँ ठीक है, एक इमेजिनरी पॉइंट सब अपनी अपनी जगह पर हैं, कौन आएगा, एटम्स आएंगे एज अ बेसिस, सब आके अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आकर अपनी अपनी जगह बैठेंगे एक लैटिस फॉर्म हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं, देखना, क्यूब बना लो एक, ठीक है ना, एक क्यूबिक क्रिस्टल ले लो, सिंपल क्यूबिक लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, सिंपल क्यूबिक लिया, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में सिंपल क्यूबिक नहीं था, शुरुआत में क्या था, ये फिर कुछ नहीं था, एक सिंपल एक ऐसे ही वैकेट स्पेस था। लैटिस पॉइंट कैसे अरेंज हुए,
यहाँ पे, here, 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 here and here. जगह फिक्स कर दी हमने. We have specified the place. Now the atom will come and sit on their respective place. एटम आएगा, एक आएगा यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. आठों अपनी अपनी जगह बैठ गए. क्या फॉर्म हो गया? क्यूब लैटिस तैयार हो गया. बात समझ में आ रही है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है? हाउ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग. यस सर. ओके, Yes, sir. दिस इज द समथिंग व्हाट अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैसे बनता है. ओके, ठीक है ना. चलो आगे एक चीज डिस्कस. किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन टिल हियर? Very simple, very trivial, very No, sir. trivial. Is it? Okay. No, sir. What? It does not trivial. It is a trivial no. Okay. Our the next discussion is about lattice parameters. Okay, lattice parameters. देखते हैं ये क्या होता है. अभी हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ना सारी, तो उसमें ये है lattice parameters. Lattice parameters. लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? सॉलिड की बात कर ली, एटम के अरेंजमेंट की बात कर ली, लैटिस बेसिस, ऑल हैव बीन डन. लैटिस पैरामीटर्स. ओके, लेट्स ड्रॉ दैट पॉइंट, दैट लैटिस पॉइंट. देखो अब हम बार बार ना यहाँ एटम को नहीं रखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ लैटिस पॉइंट से ही शो करेंगे अभी, ठीक है ना. दिस सम लैटिस पॉइंट इज देयर इन स्पेस. ओके, don't worry, don't get frustrated, because you have to make this type of structure again and again in crystallography. ठीक है ना. हम एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स सी चीज ना डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना. और एक यहाँ पर हो गया. ओके, मे बी इट डज नॉट सीम लाइक दैट, बट द स्पेसिंग बिटवीन दीज टू इज सेम. ओके ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है हर एक में, ठीक है. आप इसके अकॉर्डिंग बना लेना. अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवन, if anyone knows, tell me what this, only this front view, what does it see? ये क्या शो कर रहा है? What does it show? ये क्या शो कर रहा है? एक कोई बताएगा ये क्या शो कर रहा है? ये Sir, एक arrangement. obviously Ordered arrangement. yeah, obviously it is arrangement of atoms. एक planes है. Planes, it is planes. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल देके बता रहा हूँ. सी, ये कुछ ऐसे अरेंज हैं, थोड़ा सा ना एक विजुअलाइजेशन में आपको आसानी होगी. सी, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना. मैंने क्या किया, इसका एक डायमेंशन हटा दिया. हम 2D की बात कर रहे हैं ना, एक डायमेंशन हटा दिया. ये कुछ ऐसे है, देखना आप लोग, ये कुछ ऐसे है, ठीक है ना, ठीक है ना. ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसे इधर भी एटम्स अरेंज है, इधर भी एटम्स अरेंज है. मैंने बताया ना. They're stacked. Means as if they're stacked. सॉरी, Means as if they're stacked. Means as you have shown it. It is yes exactly, horizontal, and the horizontal plane atoms are placed. exactly. This is a front view of this. You can, if this is a, you can say this is a 2-dimensional plane, this is a front view, this is a front view, this view. ओके, सो बेसिकली ये जो एक एक पूरी की पूरी लाइन है ना एटम्स, ये क्या शो कर रहा है? एक प्लेन को शो कर रहा है. इट इज शोइंग अ प्लेन. ओके, ये चूंकि विजिबल नहीं है, इसके पीछे भी एटम्स अरेंज होंगे, जैसे मैंने अभी कॉपी में दिखाया ना, उसके साइड में भी, पीछे भी एकदम एटम्स अरेंज होंगे. इसका क्या, इसका फ्रंट व्यू है. ओके, सो बेसिकली ईच लाइन इज शोइंग अ प्लेन. यस, Just like pages of the notebook, we can yes say. exactly, yes Yes. exactly, that's why I show you na. This is a what, this is a copy. See, see, I'm showing this. इस इधर भी एटम्स हैं, इधर भी हर जगह एटम्स हैं, बट हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसका, ये वाला. यहाँ पर एटम एटम एटम, इसके इधर भी एटम होंगे, यहाँ भी एटम, उसके पीछे भी एटम्स होंगे, ठीक है ना. बात समझ में आ रही? सो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन. आई एम डिस्कसिंग हियर द लैटिस पैरामीटर्स. लैटिस पैरामीटर्स का रोल क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, बट होते क्या है पहले हम ये डिस्कस करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैटिस पॉइंट्स, सुनना ध्यान से. The distance between the 2 lattice point, I am denoting that by small a. Okay, and the distance between the 2 planar point or 2 planes, I am showing this by small p. Okay,
बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस लिया, लैटिसेस बनाए और 2 लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a सपोज किया. आई हैव टेकन सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लैटिस पॉइंट एज स्मॉल a एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन्स एज स्मॉल b. अब एक बात हम मुझे बताइए, क्या आप a और b का यूज करके 2 डायमेंशन में क्या पूरी की पूरी लैटिस नहीं बना सकते हो? बना सकते पॉसिबल सर. You can make a complete lattice, complete crystal lattice with the help of A and B. A, B. Repeat करते चले जाओ हर जगह. Okay. In the 2-dimensional, 2 lattice parameter should be there. In 3 dimension, 3 lattice parameter will be there. C will be there from the outside, 3rd dimension. Understood? So in the 2 dimensional, there's a 2 lattice parameter. What is A here? A is a distance between 2 lattice point. Distance. Yes. इसमें सी भी तो होगा ना? ये 2 डायमेंशनल लैटिस की मैं बात कर रहा हूँ. आपने जो दिखाया था कि अरेंज होगा नोटबुक लेके प्लेन में, तो ये तो तीनों डायरेक्शन में ना सर? एक प्लेन पे होंगे ना, एक प्लेन पे जिधर भी होगा, एक प्लेन की बात करो. 3 डायमेंशन मत सोचो. 3 डायमेंशन में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों होते हैं. एक प्लेन एक्स वाई प्लेन की बात करो आप. एक्स वाई प्लेन की, मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन को आप एज्यूम करो. एक्स वाई प्लेन में भाई ऑब्वियसली 2 डायमेंशन में 2 ही लैटिस वेक्टर पॉसिबल होते हैं, 2 ही लैटिस पैरामीटर पॉसिबल होते हैं. आप ऐसे सोचो ना, क्या इन 2 का यूज करके आप पूरी की पूरी लैटिस बना सकते हो? ऑब्वियसली बना सकते हो. ऐसे जब 3 डायमेंशन आएगा, हाइट यानी बाहर वाला भी एक एक्सेस इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे 3 लैटिस पैरामीटर हम देखेंगे. ठीक है? क्यूब वगैरह को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज द a here? A is the distance between the 2 lattice points. And what is b here? B is the distance between the 2 planes. Distance between 2 planes. Distance between the 2 planes. And now, सर yes. यहाँ ए और बी का जो एंगल है वो फिक्स है. नहीं जैसे नहीं, हम आप वही हो, मैं समझ, आप वही हो ना जो अभी पूछे थे सवाल. कोई बात नहीं. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार जब बोल दूं ना कंप्लीट, नेक्स्ट स्टार्ट, फिर अगर कुछ बचता है तो आप पूछ लो. ठीक है ना? मैंने अभी ये नहीं बताया था ना, मैं बता रहा हूँ. आने दो, आने दो. डोंट वरी, नो नीड टू बी सॉरी. इट्स योर राइट, यू कैन आस्क एनीथिंग, बट जस्ट आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि जब कंप्लीट हो जाए मैं कह दूं ओके दैट्स इट. अगर तब भी कुछ बच जाता है देन पूछ लो. ठीक है ना? आपने कहा यस. अगर हम प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो ए और बी भी सब चेंज हो जाएगा ना? नहीं, ओरिएंटेशन मतलब कैसे चेंज कर दो? जैसे आपने जो रखा है वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, अगर हम उसको वाई जेड किसी में भी रख दो, ZY. किसी भी रख दो. भाई आप इन दोनों की डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज कर दोगे. Yes, sir. इनकी डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना. 2 लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी. मैं इसको यहाँ हूँ, मैं किसी प्लेन में चला जाऊँ, इसको लेके कहीं भी चला जाऊँ, इन दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी. इसके ऊपर हमेशा एटम्स रहेंगे रहेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी. किसी भी प्लेन में चले जाओ, ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर. ठीक है? ओके सर, ओके सर. ठीक है ना? Like in 2 dimension ना? इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में भी ऐसा ही है. आप लोग चिंता मत करो. ठीक है ना? एक बार लैटिस पैरामीटर आज डिस्कस किया ना, कल लैटिस वेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा. लैटिस जी वेक्टर सर. से कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है? इन्हीं पैरामीटर्स को एज अ वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे. ठीक है ना? सो डोंट वरी. Thank you, sir. अभी क्या है, अभी 2 लैटिस पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर लिया है. A is the distance between the 2 lattice points and B is the distance between the 2 planes. ठीक है ना? सो आज यहाँ स्टॉप करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम लैटिस वेक्टर्स. ओके? सर यस. सर यहाँ पे ए एंड बी इज वर्किंग एज अ ट्रांसलेशन वेक्टर ना? Yes, it will act as a translation vector. I will discuss tomorrow. Don't worry. I just told here this is a lattice parameters. ओके सर. That is ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे अरेंज होता है, कैसे हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, दूसरे लैटिस पॉइंट तक पहुंचे, सब डिस्कस मेरा नहीं आख्या मैं एक मिनट क्लास खत्म हुई अगली नोलानी आज नलका लेके पढ़ लेंगे. यस. ओ सर एक छोटा सा डाउट. फोन आया मां तू पैदल जा आपने ये जो डिस्टेंस है, एडमिट कार्ड करना. Anyone's mic is off. मैं कॉलेज फोन किया था, कल सुते मैं निकलिया, कल शामी निकलिया, निकलता कि एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकलिया. मम्मी क्या प्रिंट 13,000 रुपए प्रिंटर ले बड़ा मैं किया मेरे पुंडे या क्यों लीव यार नेहा ले दे 5 दूगा प्रिंटर 5,000 का. Okay, see the class of next class time has been arrived. Okay, yes, please ask whatever you are asking.
सैली हाँ आखना सर, नहीं आपने जो ए डिस्टेंस दे रखा है दो लेटिस पॉइंट्स के बीच में, हाँ 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 सर, हाँ, उसको हम लिख लोग रहा था एज अ ना। प्लेन भी तो ट्रीट कर सकते हैं, हाँ राइट? हम गए भी आई बाहर हाँ मम्मी बिल्कुल मम्मी कर कर बिल्कुल कर, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। आप इसको वर्टिकल देख लो, ਹੁਣ ਤੂੰ यस वर्ड सर, पे यस सर, लगी एग्जैक्टली सर। आप उसको वर्टिकल देख लो तो इधर वाला फ्रंट व्यू आपका प्लेन बन जाएगा, मतलब लैटिस पॉइंट बन जाएगा, बी लैटिस पॉइंट बन जाएगा, उधर वाला प्लेन बन जाएगा। ये सर क्लास यस अच्छी है सर, अगला कर सकते हो, बट उससे उसके फाइनल रिजल्ट पे या किसी भी चीज पे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना लैटिस पॉइंट कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आप किधर से भी देखो भैया, फील्ड यस में सर, बैठे हुए हो, सामने वाला बंदा आप किधर से भी, आप किधर किधर भी देखो सब कुछ सेम नजर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं इस व्यू से देखूं तो ये हमारा क्या लैटिस पॉइंट बन जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ए बन जाएगी और ये हमारे प्लेन्स बन जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नो वरी। ओके ओके, थैंक यू ठीक सर। है, सो ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।